ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna, dear Vaishnavas. So we welcome you all again for today's session. So हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो हम लोगों की जो डिस्कशन है वो कुंती महारानी की प्रेयर्स शुरू हो रही है। बहुत ही अद्भुत ये चैप्टर है और श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है। हाँ, बेसिकली दैट्स द कंपाइलेशन ऑफ दिस होल चैप्टर बेसिकली। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोका नंबर 1.8.18। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। कुन्ती उवाच। श्रीमती कुंती said, Namasye, let me bow down. Purusham, the Supreme Person. Tva, you. Adyam, the original. Ishwaram, the controller. Prakrate, of the material cosmos. Param, beyond.
Alaksham, the invisible. Sarva, or Bhutanam, of living beings. Antaha, within. Bahi, without. Avasthitam, existing. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki jai. Srimati Kunti Maharani Kunti said, O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. Purport. Kunti Devi was quite aware that Krishna is the original personality of Godhead. Although he was playing the part of her nephew, such an enlightened lady could not commit a mistake by offering obeisances unto her nephew. Therefore, she addressed him as the original Purusha beyond the material cosmos. Although all living entities are also transcendental, they are neither original nor infallible. The living entities are apt to fall down under the clutches of material nature, but the Lord is never like that. In the Vedas, therefore, he is described as a chief among all living entities. Nityo Nityanam Chetana Chetananam. Then again, he is addressed as Ishvara or the controller. The living entities or the demigods like Chandra and Surya are also to some extent Ishvara, but none of them is the supreme Ishvara or the ultimate controller. He is Parameshvara or the super soul. He is both within and without. Although he was present before Srimati Kunti as her nephew, he was also within her and everyone else. In the Bhagavad Gita, the Lord says, I am situated in everyone's heart, and only due to me one remembers, forgets, and is cognizant, etc. Through all the Vedas, I am to be known because I am the compiler of the Vedas and I am the teacher of the Vedanta. Queen Kunti affirms that the Lord, although both within and without all living beings, still invisible. The Lord is, so to speak, a puzzle for the common man. Queen Kunti experienced personally that Lord Krishna was present before her, yet he entered within the womb of Uttara to save her embryo from the attack of Ashwatthama's Brahmastra. Kunti herself was puzzled about whether Sri Krishna is all pervasive or localized. In fact, he is both. He reserves the right. He reserves the right of not being exposed to persons who are not surrendered souls. This checking curtain is called the Maya energy of the Lord, Supreme Lord, and it controls the limited vision of the rebellious soul. It is explained as follows. तो हम लोग जो ये श्लोक का कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं शुरू हो रही हैं. तो बेसिकली अभी कुंती महारानी जो है जो प्रार्थना कर रही हैं, तो कुंती महारानी ये जो प्रार्थनाएं करेंगी, ये प्रार्थनाएं और या जो ये प्रार्थना की है, ये बेसिकली बहुत कुछ देखने के बाद, बहुत कुछ जानने के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद, बहुत कुछ रियलाइज करने के बाद की है कुंती महारानी. She is top class devotee, a realized soul, a सिद्ध devotee. और जो प्रार्थना कर रही हैं, एक एक शब्द अद्भुत है. उस प्रार्थना के एक एक शब्द अद्भुत है. And they are full of deep meaning, love for Krishna, and it is always uh, it is always recommended that we recite, remember the prayers by Kunti Maharani. So what Kunti Maharani said? Srimati Kunti Devi said, O Krishna,
I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. Namasye Purusham Tvadyam. I offer my obeisances unto you because you are the original personality and unaffected by the qualities of the material world. ओरिजिनल पर्सनालिटी मतलब भगवान आदि हैं, और अनअफेक्टेड मतलब क्या है? अनअफेक्टेड बाय दी, हाँ, मटेरियल क्वालिटीज का क्या मतलब हुआ? अनअफेक्टेड बाय दी मटेरियल क्वालिटीज का मतलब हुआ है कि भगवान को ये तीन गुण प्रभावित नहीं करते। भगवान निर्गुण है। निर्गुण का मतलब है कि भगवान, Lord doesn't come under the realm of three modes of material nature. Lord doesn't come under the realm of three modes of material nature. You are existing both within and without everything. आप exist करते हो both within and without everything. Yet you are invisible to all. भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ, अंतर में भी हैं, अंतः बहि अवस्थितम, और बाहिर भी है। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, बहेर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिम्ह मनिम शरणाम प्रपद्ये। अंतर में नरसिम्हा है और बाहर भी नरसिम्हा है। दोनों स्थानों पे नरसिम्ह देव है, अंतर बहिर, हाँ, दोनों स्थानों पे है। इसका मतलब क्या है? भगवान जो है सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान है। यत्र तत्र सर्वत्र भगवान है। और वास्तव में अगर हम देखें तो इस संसार में, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि केवल कृष्ण तत्व है। केवल कृष्ण तत्व का मतलब क्या है? कि या तो कृष्ण है, या कृष्ण की एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी, और या फिर कृष्ण के जीव हैं। तो केवल कृष्ण तत्व ही एग्जिस्ट कर रहा है चारों दिशाओं में। और आध्यात्मिक जगत में क्या है? वहां पर केवल कृष्ण तत्व है। वहां पर कैसे कृष्ण तत्व है? यहाँ पर, वहां पर केवल कृष्ण है, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, और कृष्ण के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। तो ये अंतर है। हाँ, इस संसार में जब हम तीन गुणों के अधीन होते हैं तो हमको बहुत सारे तत्व दिखते हैं। हमको पूरा संसार दिखता है, हमें बहुत सारे तत्व दिखते हैं जब हम तीन गुणों के अधीन। परंतु जब हम तीन गुणों से परे चले जाते हैं, या फिर जब हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तब हमें केवल कृष्ण तत्व दिखाई देते हैं। केवल कृष्ण तत्व दिखाई देते हैं। और इस संसार में जो ऐसे भौतिकवादी लोग हैं, हाँ, उन लोगों को कृष्ण तत्व दिखाई नहीं देते। उन लोगों को माया तत्व दिखता है हर जगह। उन लोगों को हर जगह क्या दिखता है? माया तत्व दिखता है। तो वो हर चीज को मायामयम कर देते हैं। एवरीथिंग दे ट्रांसफॉर्म इनटू मायामयम। भगवान के मंदिर में भी सेल्फी, हाँ, सामने भगवान है लेकिन सेल्फी लेना है। सेल्फी का क्या मतलब हुआ? कि आई एम दिस बॉडी एंड कृष्णा इज इज ऑब्जेक्ट फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन। कृष्ण के साथ सेल्फी लेके, हाँ, मेरी सेल्फी को बहुत सारे लाइक्स आने वाले। तो ये ऐसा, ये जो भगवान को जो भोग कर रहा है उसको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। वो नहीं देख सकता, यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण को नहीं देख सकता वो।
वो देख ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसको कौन दिख रहा है? उसको अ, अपनी इंद्रिय तृप्ति दिख रही है। उसकी कॉन्शियसनेस कहाँ फंसी हुई है? इंद्रिय तृप्ति में फंसी हुई है। उसकी कॉन्शियसनेस इंद्रिय तृप्ति में फंसी हुई है, और इसीलिए उसको भगवान नहीं दिख रहा है। और यहां पर कुंती महारानी क्या बोल रही है कि आप, यू आर बोथ विद इन एंड विदाउट एवरीथिंग, येट यू आर इनविजिबल टू ऑल। तथापि आप इनविजिबल हैं। क्यों इनविजिबल है? क्योंकि सब हिरण्यकशिपु हैं। केवल हिरण्यकशिपु को ही नहीं दिखता है, नहीं दिख रहे हैं। हाँ, कि हिरण्यकशिपु को क्या दिख रहा है? सर्वत्र मैं दिख रहा है। सर्वत्र मैं दिख रहा है हिरण्यकशिपु को। इसीलिए नरसिम्हा देव नहीं दिख रहे। इसलिए नरसिम्हा देव नहीं दिख रहे। नरसिम्हा देव कैसे दिखेंगे उसको? क्योंकि उसको कौन दिख रहा है? उसको मैं दिख रहा है। इसलिए उसको, हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं दिख रहे हैं। और प्रहलाद महाराज को कहाँ दिख रहे हैं? सर्वत्र भगवान दिख रहे हैं। सर्वत्र भगवान दिख रहे हैं। सर्वत्र भगवान दिख रहे हैं। ये कुंती महारानी कह रही हैं कि भगवान आप इन तीन गुणों से परे हो, आप सर्वत्र व्याप्त हो, येट आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे हो। और क्यों नहीं हो रहा ऐसा, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। ये शिल प्रभुपाद बता रहे हैं। श्रीमती कुंती देवी वॉज क्वाइट अवेयर दैट कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ऑल्दो ही वॉज प्लेइंग द पार्ट ऑफ हर नेफ्यू। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुंती महारानी को एकदम क्लियर कट पता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ऑल्दो ही वॉज प्लेइंग द पार्ट ऑफ हीज नेफ्यू, हर नेफ्यू। हाँ, वो जान रही हैं कि ये जो मेरा जो ये नाट्य कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं कि मेरे नेफ्यू हैं, परंतु ये है तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट। सच एन एनलाइटन लेडी कुड नॉट कमिट अ मिस्टेक बाय ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू अनटू हर नेफ्यू। ऐसा नहीं है कि कुंती महारानी भावुकता में ये प्रार्थना कर रही है। ऐसा होता है संसार में ना, हम देखते हैं, जैसे कोई गरीब आदमी होता है, हाँ, उसको अगर कोई पैसा दे दे तो उसके लिए वो क्या हो जाता है? उसके लिए वो भगवान हो जाता है। किसी भूखे को भोजन कराए तो उसके लिए वो भगवान हो जाता है। हम्म? कोई किसी का, स्त्री का, कोई स्त्री को किसी, उसका विवाह करा दे तो वो उसके लिए भगवान हो जाता है। कोई किसी को पाल पोस के बड़ा कर ले तो वो उसके लिए भगवान हो जाता है। तो ये लोकलाइज्ड ईश्वर हैं, लोकलाइज्ड भगवान है ये सब। और ये लोकलाइज्ड भगवान क्या करते हैं? लोकलाइज्ड भगवान जो है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये टाइनी है। लोकलाइज्ड भगवान उस व्यक्ति के लिए वो भगवान है, परंतु वास्तव में वो भगवान है क्या? नहीं। तो कुंती महारानी ऐसा ऐसा अपने नेफ्यू को ऐसे प्रणाम नहीं कर रही हैं। ये थोड़ा समझना है हमें। कि कुंती महारानी, हाँ, क्योंकि उनके भांजे ने, हाँ, उनको बुआ है, तो उनके भतीजे ने जो, हाँ, जो उनको बचाया हर जगह। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि अब भतीजे ने बचा लिया तो फिर चारों दिशाओं में अब भतीजा ही भगवान हो गया। ऐसा नहीं है, यही प्रभुपाद बता रहे हैं। क्योंकि वो हर बार खड़े हो रहे हैं उनके लिए, इसलिए वो भगवान हो गए, ऐसा नहीं है। इसीलिए अर्जुन के साथ भी प्रभुपाद बता रहे हैं, और वहां पर भी प्रभुपाद बताते हैं, जब अर्जुन प्रार्थना करते हैं क्या बोलते हैं? कि आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं। हाँ? परंतु, हाँ, भगवान बोलते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये चाटुकारिता करते हुए अर्जुन नहीं कह रहे हैं। ये चाटुकारिता होती है ना, चाटुकारिता समझते हैं? चाटुकारिता, चाटुकारिता करते हुए नहीं कर रहे हैं अर्जुन कि आप महान है, ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं।
चाटुकारिता। और ये कुंती महारानी भी वो वैसे भगवान नहीं मान रही है कि किसी के लिए कोई देवता हो जाता है। एक संस्कृत में पोयम भी है, मम माता देवता, पिता देवता। देवता है माता पिता, पर भगवान नहीं है। देवतुल्य है माता पिता, पर भगवान नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। देव हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, परंतु भगवान नहीं है। भगवान भगवान है, और देवता देवता है, और मनुष्य मनुष्य है, यक्ष यक्ष है, किन्नर किन्नर है, रिलेटिव्स रिलेटिव्स हैं। भगवान अलग हैं। और भगवान चूंकि यहाँ पर रिलेटिव, एक नेफ्यू, भतीजे का रोल कर रहे हैं, कुंती बुआ के भतीजे का रोल कर रहे हैं, तो इसका इसका मतलब ये नहीं है कि अ, भगवान भतीजा हो गए। भगवान ऐसे समस्त बंधनों से मुक्त रहते हैं। भगवान को ऐसे कोई बंधन बांधते नहीं हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई बंधन नहीं है जो भगवान को बांध सकता है। न तो कोई गुणों का बंधन, न कर्मों का बंधन, न किसी श्राप का बंधन, न पुण्य का बंधन, न किसी इमोशंस का बंधन। कोई बंधन भगवान को बांध नहीं सकता। तीनों लोकों में कोई बंधन भगवान को नहीं बांध सकता। तो भगवान को कौन सा बंधन बांध सकता है? प्रेम का बंधन बांध सकता है। प्रेम, प्रेम का बंधन बांध सकता है भगवान को। Although all living entities are, therefore she addressed him as the original Purusha beyond the material cosmos. अब कुंती महारानी ये नहीं बोल रही कि आप देवता हैं क्योंकि आपने हमको बचा लिया। वो बोल रही हैं यू आर द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, द ओरिजिनल पुरुषा बियॉन्ड दिस मटेरियल कॉस्मोस। संसार के परे के तत्व हो आप, संसार के तत्व नहीं हो आप। Although all living entities are also transcendental, सभी जीवात्माएं ट्रांसेंडेंटल हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, सभी दिव्य हैं। दे आर नाइदर ओरिजिनल नॉर इनफॉलिबल। आदि नहीं है वे। हाँ, ओरिजिनल, आदि, आदि नहीं है वे। ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल मतलब क्या होता है? ओरिजिनल मतलब क्या होता है? फर्स्ट कॉपी। इसको हम ओरिजिनल बोलते हैं ना, जो फर्स्ट, ओरिजिनल। और उसके बाद जो कॉपी, कॉपीज निकलती हैं वो क्या होती हैं? फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ऐसे बोलते हैं ना। ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना। तो ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहां से, ओरिजिनल मतलब जहां से ओरिजिन निकलता है। तो वो ओरिजिन हम नहीं है। ओरिजिन के, ओरिजिन हम नहीं है। हम्म? हम लोग ट्रांसेंडेंटल हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान भी ट्रांसेंडेंटल है, तो हम भी ट्रांसेंडेंटल है ना। बट हम ओरिजिनल नहीं है, और इनफॉलिबल भी नहीं है। इनफॉलिबल भी नहीं है। हम, हमारा पतन होता है, हम च्युत हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। The living entities are apt to fall down under the clutches of material nature. But the Lord is never like that. पर भगवान का पतन नहीं होता है। In the Vedas, therefore, he is described as the chief among all living entities. नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। वेदों में उनको डिस्क्राइब किया गया है क्या? Chief among all living entities. Nitya Nityanam Chetanash Chetananam. Then again he is addressed as Ishvara, or the controller. हम्म? ईश्वरा मतलब हमारे जैसे ईश्वर नहीं, परम ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, सर्वेश्वर, परम ईश्वर। हमारे जैसे नहीं है भगवान। हम छोटे छोटे ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, कुछ कुछ कंट्रोल कर सकते हैं,
पर भगवान सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान सब कुछ कंट्रोल करते ही हैं। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में ही है। The living entities or the demigods like Chandra and Surya are also to some extent Ishvara, प्रभुपाद कह रहे हैं, but none of them is the supreme ईश्वर or the ultimate controller। तो हम जो जीवात्मा है हम भी छोटे छोटे ईश्वर हैं, ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर नहीं है। हाँ, परंतु भगवान परम ईश्वर है और हम नहीं है परम ईश्वर। ही इज द परमेश्वर और द सुपर सोल। वे तो परमेश्वर हैं और सुपर सोल है, परमात्मा भी है, परम आत्मा। ये है, हम सभी को समझना होगा। जब भी संसार में कोई भी व्यक्ति बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, तो ऐसे बोलता है जैसे कि वही सुप्रीम ब्रह्म है। तो उसको ये समझना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि वो पर ब्रह्म, अहम ईश्वर अस्मि। हाँ, अहम ईश्वर अस्मि वो परमेश्वर। हाँ, अहम आत्मा अस्ति। हाँ, हाँ, आप आत्मा अस्ति, परंतु वो परमात्मा अस्ति। वो है, हम्म, जिसको सब पूरा वैदिक वांग्मय जिनको ढूंढ रहा है, जिनकी तरफ निर्देशित कर रहा है, वो आप नहीं हो, वो भगवान है। जिनकी तरफ जिसको पूरी सृष्टि ढूंढ रही है, हाँ, जिनके, हाँ, इच्छा मात्र से सृष्टि कार्य कर रही है, वो आप नहीं हो। आपकी इच्छा से आपकी अपनी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, है ना। हमारा अपना शरीर हमारी इच्छा से काम नहीं करता है, तो फिर हम ईश्वर कैसे हो गए। हमारा अपना शरीर हमारी इच्छा से काम नहीं करता है, तो हम ईश्वर नहीं हो सकते। हम ईश्वर है ही नहीं, हम तो दास है। और जब व्यक्ति सोचता है कि मैं ईश्वर हूं, तो फिर संसार में वो भिन्न, डिपेंडिंग अपॉन दी उसके अंदर कितना गहरा ये सदमा लगा हुआ है, या क्या बोलेंगे उसको, कितना गहरा उसके अंदर ये ईश्वर भाव कूट कूट के भरा हुआ है। ये ईश्वर भाव कितना उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उसके डिपेंडिंग, उसके अकॉर्डिंग उसको भगवान शरीर देंगे। जैसे अगर किसी कोई ये सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूं, और मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है, या वो ईश्वर भी मैं ही हूं, तो भगवान उसको मायावादी बनाएंगे। और प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द लास्ट नेयर ऑफ द माया, कि मैं परम ईश्वर हूं। लास्ट नेयर है माया का। आप ईश्वर नहीं है, आप दास हैं भगवान के। और इसका इसका क्या प्रमाण हुआ कि आप सरलता से भगवान की सेवा करो, बस। आप भगवान की सेवा करो, और क्या है, आप अपनी मर्यादा में रह के भगवान की सेवा करो। परंतु इस संसार में लोग ईश्वर बनना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना कि इफ वी आर मेड द टेम्पल प्रेसिडेंट, प्रभुपाद ने किसी, जब न्यू न्यू टेम्पल प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना की, तो क्या बोले कि इफ यू आर मेड द टेम्पल प्रेसिडेंट यू थिंक दैट यू हैव बीन मेड द ईश्वर ऑफ द होल वर्ल्ड। सबका अपना अपना दायरा है। जैसे, हाँ, किसी एक परिवार में एक एक मेल पुरुष है, तो उसको उसके परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज परिवार की सेवा। फिर उसको एक अथॉरिटी मंदिर में कुछ सेवा देती है, तो वो मंदिर की उस सेवा के लिए ऑथराइज्ड है ना, ऑथराइज्ड है। परंतु जो ऑथराइज नहीं है, अगर वो जबरदस्ती किसी के रियाम में घुसना चाहे, या किसी के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आना चाहे, या उसकी सेवा को बर्बाद करना चाहे, तो फिर वो कौन है।
वो कौन है? वो ईश्वर बनने की चेष्टा कर रहा है। तो वो ईश्वर तो नहीं है वो। तो कौन बन जाएगा फिर? वो राक्षस बन जाएगा। ये जबरदस्ती कौन करते हैं? संसार में जबरदस्ती कौन करते हैं? मेरे हिसाब से होना चाहिए मेरे। आप अथॉरिटी हैं। हाँ, आपको जगत अथॉरिटी बना दिया भगवान ने कि आप पूरे संसार को चलाओगे। कब बोला आपको भगवान ने? आपको कब बोला आपके गुरु ने कि आप जगत की अथॉरिटी बन जाओ? आपको जो सेवा दी आप वो सेवा करो ना। हाँ, आपको जो सेवा दी आप वो सेवा करो, सरल है। परंतु आपको ये सेवा, हाँ, समझ में नहीं आ रही है। तो आप राक्षस बन रहे हो, क्योंकि आपको सेवा करनी ही नहीं है। आपको क्या बनना है? ईश्वर बनना है। वरना तो सेवा मिली तो सेवा कैसे करते हैं? जो दास मानता है अपने आप को, कैसे सेवा करता है? जैसे हनुमान जी सेवा करते थे। हाँ, कि राम काज किए बिगर मुझे चैन नहीं है। कितने प्रलोभन आए। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए तो कितने प्रलोभन आए, जब लंका गए तो कितने प्रलोभन आए, कितने ऑब्स्टेकल्स आए। बट हनुमान जी तो सेवा कर रहे हैं। और हनुमान जी क्या आ, किसी की सेवा में अड़ंगा डाल रहे हैं? ऐसे सुग्रीव जी की सेवा में अड़ंगा डाल रहे हैं? किसी की सेवा में नहीं डाल रहे हैं। परंतु हम लोगों को सबकी सेवा में अड़ंगा डालना है। जिसको जिसके जिसको जिस सेवा के लिए भगवान ने नियुक्त किया है वो सेवा करेगा ना। आपको क्या मतलब है संसार में? और यही तो दुर्योधन का इशू था ना। दुर्योधन का इशू क्या था? दुर्योधन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको भीष्म, युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव ने, हाँ, वो सबने मिलके ऑथराइज्ड किया है पांडु महाराज को, फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को ऑथराइज्ड किया है। और चलो आपको आपको हस्तिनापुर चाहिए था तो उनको इंद्रप्रस्थ दिया है। परंतु आप पागलपन में हो। आप द्वेष के पागलपन में हो। तो आपसे सहन नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? बर्बादी कर रहे हो चारों तरफ। चाहों और बर्बादी कर रहे हो। परंतु आप क्या बर्बादी कर सकते हो? आप खुद बर्बाद हो जाओगे। हम्म। तो ये ईश्वर भाव जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Then again, he is addressed as Ishvara or the controller. The living being entities or the demigods like Chandra and Surya are also to some extent Ishvara. But none of them is supreme Ishvara or the ultimate controller. अल्टीमेट ईश्वर नहीं है कोई भी। सब सब सोचते हैं कि हम ईश्वर हो गए, हम फलाना हो गए, हम ढिमाका हो गए, हम ऐसा हो गए, हम वैसा हो गए। पर हम ईश्वर नहीं है। ही इज परम ईश्वर और द सुपर सोल। ही इज बोथ विद इन एंड विदाउट। वो विद इन भी है और विदाउट भी है। ऑल्दो ही वॉज प्रेजेंट बिफोर श्रीमती कुंती एज हर नेफ्यू। वो उनके कुंती महारानी के सामने उनके भतीजे के रूप में उपस्थित हैं। ही वॉज ऑल्सो विद इन हर एंड एवरी वन एल्स। परंतु भगवान तो सब में व्याप्त है। इन दी भगवत गीता द लॉर्ड सेज, आई एम सिचुएटेड इन एवरी वंस हार्ट। मैं सिचुएटेड हूं इन एवरी वंस हार्ट एंड ओनली ड्यू टू मी वन रिमेंबर्स, फॉरगेट्स एंड इज कॉग्निजेंट। मैं तो सबके हृदय में स्थित हूं और मेरे कारण ही, हाँ, बुद्धि स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान के कारण ही बुद्धि स्मृति और ज्ञान होता है। Through all the Vedas, I am to be known because I am the compiler of the Vedas and I am the teacher of the Vedanta. Through all the Vedas, I am to be known. मुझे जानना है। मैं जानने योग्य हूँ। Because I am the compiler of the Vedas and I am the teacher. मैंने ही वेदों का संकलन किया है और मैं ही वेदों का टीचर। When Kunti affirms that the Lord, although both within and without all living beings, is still invisible. यद्यपि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, भगवान still invisible है। The Lord is, so to speak, a puzzle for the common man. भगवान क्या है? पजल है कॉमन मैन।
Queen Kunti experienced personally that Lord Krishna was present before her. Uh, the Lord is, so to speak, a puzzle for the common man. सभी कॉमन व्यक्तियों के लिए भगवान एक पजल है। पजल क्यों है? पजल क्यों है? क्योंकि जीवात्माएं संसार में भगवान को देखना ही नहीं चाहते, इसलिए पजल है। Queen Kunti experienced personally that the Lord Krishna was present before her. Yet he entered within the womb of Atra to save her embryo from the attack of Ashwatthama's Brahmastra. Queen Kunti experienced personally that Lord Krishna was present before her. Lord Krishna present है उनके सामने, परंतु हाँ, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए वे स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। Kunti herself was puzzled about whether Shri Krishna is all pervasive or localized. कुंती महारानी भी पजल्ड हो गई कि परमात्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त है या फिर केवल एक स्थान पर स्थित, हाँ, कृष्ण है। ये भगवान की लीला है। इनफैक्ट इस बोथ, यद्यपि वो बोथ सर्वत्र भी हैं और लोकलाइज्ड भी हैं, हाँ, एक स्थान पर भी हैं, बट ही रिजर्व्स द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज्ड। परंतु वो किसके सामने प्रकाशित होंगे और किसके सामने नहीं होंगे, ये उनकी मर्जी है। हाँ, और भगवान उनके सामने प्रकाशित नहीं होते जो सरेंडर्ड नहीं है। This checking curtain is called as Maya energy of the Supreme Lord. और ये जो कर्टेन है, ये क्या है? माया एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एंड इट कंट्रोल्स द लिमिटेड वर्जन ऑफ विजन ऑफ द रिबेलियस सोल। और ये रोक देता है लिमिटेड विजन ऑफ द रिबेलियस सोल। इट इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, और ये इस प्रकार से, हाँ, बताया गया है। बहुत ही अद्भुत ये श्लोक का है। हम्म, कुंती महारानी बेसिकली यही श्रीमद् भागवतम करती है, कैटव धर्म का सर्वनाश कर देती। कैटव धर्म क्या है? क्या, व्हाट इज कैटव धर्म? कैटव धर्म है यू आर ईश्वर, ये कैटव धर्म। सरल भाषा में इस संसार में जितने भी धर्म हैं, हम्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जितनी भी ये बातें हैं, ये सब कैटव धर्म है। क्यों? ये सब जीव को ईश्वर बनाने की बात कर रही है। तुम धर्म करो तो क्या होगा? तो तुम ईश्वर बन जाओगे। क्यों? फिर तुम्हें अर्थ मिलेगा। फिर तुम अर्थ कमाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? तुम ईश्वर बन जाओगे, क्योंकि तुम भोक्ता बन जाओगे, भोग कर सकोगे। और फिर जब तुम अपने भोग में फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, तब तुम क्या बन जाओ? फिर तुम ईश्वर बन जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब ईश्वर बनाने की चेष्टा है जीव को। तो कैटव धर्म क्या है? मैं ईश्वर हूं, ये कैटव धर्म है। यही कैटव धर्म है कि मैं ईश्वर हूं। और ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम कैटव धर्म को अपनी सटल बॉडी में पकड़ के रखे। और जो व्यक्ति ये बोलेगा कि तुम ईश्वर नहीं हो, फिर उसको मार दो। हाँ, जैसे हरिदास ठाकुर पाद हरिदास ठाकुर पाद अपना जप कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया भगवान नाम चिंतामणि विग्रह, राम चिंतामणि, हम्म, चैतन्य रस विग्रह, अभिनत्वा नाम नामिनो। हाँ, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ये समझ लिया हरिदास ठाकुर पाद ने। अब वो नाम की आराधना कर रहे हैं दृढ़ता से। तो अब नाम की आराधना कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि वो भगवान के सानिध्य में है, भगवान से टोटल कांटेक्ट में है। तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्यता आ जाएगी। हाँ, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे वो। तो उससे क्या होगा? तेज हो जाएगा, तेजोमय। अब तेजोमय हो जाएगा तो बाकी के जो ईश्वर बनना चाहते हैं, वो ईश्वर क्यों स्वीकार करेंगे कि इसका तेज बढ़े? हाँ, और ईश्वर बनने की अलग अलग चेष्टा है ना इस संसार में। इस संसार के परे ईश्वर बनने की चेष्टा है कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। और इस संसार में ईश्वर बनने की क्या चेष्टा है? हाँ,
पावर, पीपल, पोजीशन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, धनम, जन्म, सुंदरीम, कविताम, वह जगदीश कामये। हम्म, तो अगर किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास अच्छी पोजीशन है, किसी के पास ज्यादा लोग हैं, तो उससे द्वेष होगा, ईश्वर भाव। पूजा किसी को ज्यादा मिल रही है, प्रतिष्ठा किसी को मिल रही है ज्यादा, लाभ मिल रहा है ज्यादा, तो द्वेष होगा। किसी के पास ज्यादा धन है, ऐश्वर्य है, हाँ, किसी के पास अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, तो उससे भी द्वेष होगा। तो ये सब क्या है? ये सब आसुरीम भावमाश्रिता। तो ऐसे असुर लोग दंडित किए जाएंगे। दंडित, दंडित किए जाएंगे ऐसे ऐसे लोग। क्योंकि ये जो जबरदस्ती है ना, जबरदस्ती, अगर किसी को किसी भक्त से कुछ प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेगा? केवल वो आदर दे दे बस, उससे भी सब प्राप्त हो जाएगा। जेन्युइन आदर, केवल वो अ, दर्शन कर ले, उससे भी प्राप्त हो जाएगा। परंतु इस संसार के जीवात्माओं का क्या है? इस संसार की जीवात्माओं ने सब जैसे भूखे भेड़िए जैसे हैं, भूखे भेड़िए, भूत, गुंडे, भूखे भेड़िए, शिकारी, अ, भूत, रक्त पिशाच, तो उनके अंदर ये सबमिसिवनेस नहीं है। और ये अगर सबमिसिवनेस भी है तो ये दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र के समान है। हाँ, अपना काम निकालने के लिए सबमिसिवनेस है, अपना काम निकालने के लिए सबमिसिवनेस है, ये धूर्तता है। अपना काम निकालने के लिए सबमिसिव, दे डोंट बिलीव कि हम, हाँ, ईमानदारी से प्रेममय सेवा करके, हाँ, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वो कल्टीवेशन है ना, जन्मों का कल्टीवेशन है। जन्मों से यही कल्टीवेशन किया है, जबरदस्ती करना, गुंडागर्दी करना, शिकारी बन के दृष्टि लगा देना, अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, अब मैं ईश्वर बनूंगा। तो ये सब शिकार है। हाँ, फिर ये नहीं काम किया तो पागलपन कर देना, सब सर्वनाश कर दूंगा, ये वैसा वैसा ये। वो नहीं हुआ तो भूत बन जाना, भूत बन के इधर उधर भटकना, इधर कभी भटक रहे, कभी उधर भटक रहे, कभी इधर भटक रहे, कभी उधर भटक रहे, कभी पागल समान घूम रहे हैं। और वो उससे भी काम नहीं बना तो हाँ, रक्त पिशाच बन जाओ। नहीं तो रक्त पिशाचों को पकड़ के दूसरों पर छोड़ दो, तांत्रिकों के पास जाओ, तंत्र विद्या करो। ये सब इतना इतना उत्पाद कर रहे हैं। यही ना, इस कलयुग में जो श्रद्धा है लोगों की, वो किस पे है? राक्षस लोगों की श्रद्धा किस में होगी? राक्षसों में होगी। राक्षसों की श्रद्धा किस में होगी? राक्षसों में होगी, राक्षसी कार्य में होगी। क्योंकि कभी कभी इनको समझ में ही नहीं आया ना कि प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, रेस्पेक्ट करके ही सब कुछ। ऐसा समझ में नहीं आया। कभी वो रेस्पेक्ट भी करता है तो ऐसे रेस्पेक्ट करता है, ऐसे इधर झुकता है, और ऐसे सोचता है कि अब इसका माल दबा लूंगा मैं। अच्छा, ऐसे शिला प्रभुपाद के साथ भी बहुत लोगों ने किया। डिसाइपल्स, सो कॉल्ड डिसाइपल्स ने किया। सबको, सब तो उस स्तर पे नहीं है ना। तो सब, किसी को शिल प्रभुपाद में गुरु दिख रहे हैं, किसी को आचार्य दिख रहे हैं, किसी को देव भगवान स्वयं कृष्ण को देख रहा है शिल प्रभुपाद में, और किसी को माल दिख रहा है आचार्य का। ये आचार्य के पास माल बहुत बढ़िया है। हम्म, शिल प्रभुपाद को एक वॉच मिली थी, वॉच। तो फिर शिल प्रभुपाद रॉल्स रॉयस में जाते थे, फिर शिल प्रभुपाद को सिंहासन मिलता था। तो कईयों की दृष्टि उस पर रहती थी कि कब हम शिल प्रभुपाद जैसा ऐश्वर्य भोगेंगे। उनको ऐसा कभी लगा ही नहीं कि शिल प्रभुपाद की सेवा करना है
प्रेम क्या है? प्रेम में अंतर है, प्रेम में और फॉल्स ईगो में ही अंतर है। प्रेम चाहता है सेवा करके स्वामी को संतुष्ट करना, प्रेम उसके बदले में कुछ नहीं चाहता। और जो भोग है वो क्या चाहता है? वो माल, वो सेवा कर, इधर सेवा कर रहा है और दृष्टि माल पे पड़ी हुई है। उसकी दृष्टि माल पे है। ये सेवा कर रहा है, ऐसा झुक के सेवा कर रहा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, और उसकी दृष्टि कहाँ है? माल, माल कहाँ मिलेगा, वहां पर उसकी दृष्टि है। और माल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी माल हो सकता है। ये हमारे घर में आएंगे, हमारा प्रसाद हमारे घर में चरण रख देंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा, हमारी दुख दारिद्री दूर हो जाएगी। तो गुरु इसलिए थोड़ी होते हैं कि तुम्हारी दुख दारिद्री दूर करेंगे। तो साइड इफेक्ट है, वो हो ही जाएगा अगर आप सेवा करेंगे, तो वो तो नेचुरल होना है, उसमें क्या है। परंतु गुरु, गुरु का पर्पस तुम्हारे दुख दारिद्र दूर करने के लिए नहीं है। गुरु का पर्पस तुम्हें भगवत प्राप्ति कराना है। ये है गुरु। हम सोचते हैं कि गुरु आ जाएंगे तो फिर सब जगह मेरी गुरु के साथ फोटो रहेगी, तो सब जगह मेरे को भी रिकॉग्निशन मिल जाएगा, सब मानेंगे कि वाह, ये गुरु जी के साथ रहता है, ये गुरु जी का बड़ा वाला शिष्य है। हाँ, सब प्रतिष्ठा, चारों ओर प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा घूम रही है, वाह। ऐसे 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 हाँ, ठगाई होती है, ठगाई, ठगाई। तो भगवान जो स्वयं को ठगना चाहते हैं, भगवान उनको ठग लेते हैं। उनको लग रहा है कि वो भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, उनको लग रहा है वो बहुत बड़े भक्त हैं, उनको लग रहा है कि वो बहुत महान भक्त हैं, पर उनको दिख नहीं रहा है कि प्रतिष्ठा उनको ठग रही है। तो ऐसे भक्त लोग जिसकी जैसी चेतना, वो वैसा डेस्टिनेशन, वो इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है। इसलिए तो शिल प्रपात बोले ना कि कौन कहाँ जा रहा है, ये तो उसके हृदय में क्या चल रहा है उस पर डिपेंडेंट है। अगर उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, वृंदावन जाएगा। अगर उसको कुछ नहीं चाहिए और केवल भगवान की प्रसन्नता चाहिए, तो गोलोक वृंदावन जाएगा। और यदि उसको संसार का माल भोगना है, तो इस संसार में वापस आएगा। तो बहुत सरल है। जैसा संग वैसी श्रद्धा, जैसी श्रद्धा वैसी इच्छा, जैसी इच्छा वैसा कार्य, जैसा कार्य वैसी आसक्ति, जैसी आसक्ति वैसी चेतना, और जैसी चेतना वैसी गति। ये है गति। ठीक है। डियर वैष्णव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेस सेशन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि।